Hello, good evening. Just look at the lecture. Today's lecture going to be become very shorter. We are going to be completed just theoretical section, right? So there is a one more theorem, angle side theorem remains. So before shifting to the that principle of congruent topic, which is going for the triangle, right? So before that, I am going to take this question, right? I am just going to explain how they are going to be solved this question. So this question is saying they are provided just the diagram, and we have to be two things we have to be prove, right? The triangle DBC, and the triangle EAC. That we have to be proved. It should, they are the congruent, right? And the DC side equals to the BEC side, means that if you are able to prove DBC congruent with the triangle EAC, then automatically this proof is going to be done, right? Because once the triangle are going to be congruent, then this side is also going to be same. I will explain how it would be, right? Then just look at the angle ACD. What it says, ACD, this angle they are assuming this is x, so I also written x, right? And the angle b BCE, this is also x, right? Then this remains angle is what? Remaining angle is what? 180 minus 2 times x, can I write? Yeah, ये कौन सा एंगल हुआ जाके? डी एंगल DCE, right? This is going to be this angle, right? So now look at angle ACE में, मतलब ACE में आप ये देखो AC कि ACD में अगर हम DCE एंगल ऐड कर दें तो DCE एंगल हमने निकाल लिया है 180 डिग्री माइनस 2x, राइट? ये हम लिख सकते हैं। और एंगल BCD को देखिए, BCD को, राइट, उसमें भी क्या लिख सकते हैं कि प्लस BCE DCE एंगल प्लस BCE एंगल, वही चीज हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं? अब ये देखो, ये दोनों एंगल क्या हो गए? सेम हो गए कि नहीं हो गए? ACE नाउ यू सी एंगल ACE इक्वल टू क्या हो गया? एंगल BCD हो गया कि नहीं हो गया? देखो, एंगल ACE मीन्स दैट दिस वन, ये इक्वल किसके हो गया? BCD के, मीन्स इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, इस वाले के। ठीक है, नाउ यू सी, here we are able to write this same thing, right? Now you see कि एंगल AEAC या ACE ये प्रूव्ड, ये तो पहले ही दिया हुआ है, राइट? ACE जो हमने अभी जस्ट ऊपर प्रूव किया, और BC साइड किसके बराबर है? BC साइड किसके बराबर है बताओ? This side equals to AC, right? And the angle CBD and EAC ये ऑलरेडी दिया हुआ है, right? Now you see, हम इस तरीके से ट्रायंगल बना सकते हैं, राइट? नाउ यू सी, इसमें वही वाली प्रॉब्लम हो गई, वही वाली थ्योरम लग गई, कौन सी? एंगल, एक एंगल हुआ और दोनों एंगल के इंटीरियर साइड क्या हो गई? सिमिलर हो गई, इक्वल हो गई, किसके? दूसरे ट्रायंगल के। देन दी वो ट्रायंगल आर गोइंग टू बी व्हाट? कॉन्ग्रुएंट, राइट? पॉइंट ए किससे मैच किया? पॉइंट ए किससे मैच किया बताओ? पॉइंट ए किससे मैच किया? पॉइंट ए मैच किया बी से, और पॉइंट सी मैच किया सी से, वो तो कॉमन है। और पॉइंट डी किससे मैच किया? ई से। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू राइट द ट्रायंगल DBC congruent with triangle EAC, right? Now just come to the second problem, right? Just wait.
दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम, राइट? सो व्हाट इट सेज, ये हमने अभी प्रूव कर लिया, डीवीसी ट्रायंगल क्या हो गया, ईएसी के सिमिलर हो गया। देन कैन आई राइट, फ्रॉम द प्रीवियस कंक्लूजन, आई मीन this we have to be proved, this already proved, right? Once the triangle dbc dbc going to be congruent, right? dbc going to be congruent with triangle. Now you see, just before, now you see the triangle dbc congruent with triangle eac, right? Means that can I write, because this side C is similar to this point, D is similar to this point. Can I write DC equals to EC? Yeah, we can write, right? And we can also write, I mean, angle D equals to angle E, right? This thing we can also write. And EA equals to BE. These are the conclusion we can make, and remaining things already given, and remaining things you can say we have already proved, right? So this problem is also solved. Now you see the third theorem, right? Third theorem, what it says, if the two angles and one side of the one triangle are equal, क्या कह रहा है, if the two angles and one side of one triangle equal to the two angles corresponding side of the other triangle, then triangles become the congruent, right? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, right? क्या हमने क्या लिया हुआ, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें से कोई भी दो एंगल आप चूज कर लीजिए। हमने एंगल ए चूज किया, राइट, और एंगल बी चूज किया, राइट। अब देखो, एंगल ए किसके बराबर हमने चूज किया, एंगल डी के बराबर। एंगल बी को चूज किया हमने किसके, ई के बराबर, राइट। अब इन दोनों एंगल के अलावा एक कोई साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड किसके बराबर चूज की, इसके बराबर। क्या चूज किया, एंगल ए बराबर डी है, एंगल बी बराबर ई है, और बी सी बराबर क्या है, ई एफ, राइट। देन वी कैन राइट, क्या, कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विद डी, ट्रायंगल डी ई एफ, राइट। सो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये किस वजह से हो पा रहा है, बिकॉज एंगल एंड साइड, करस्पॉन्डिंग साइड, राइट, ठीक है ना। अब इसमें करस्पॉन्डिंग साइड लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा है भाई, अच्छा ये देखो, हम ऐसा क्या लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल डी एफ ई, कैन आई राइट दिस, कल हमने इस चीज के बारे में जिक्र किया था। कैन आई राइट दिस, पॉसिबल है, डी एफ ई, क्या पॉसिबल है बताइए। क्या एंगल बी बराबर है एफ के, क्या एंगल बी बराबर है यहाँ पे एफ के, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, राइट। दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसमें क्या कह रहा है देखो, कि एंगल ए बराबर है डी के, ठीक है, एंगल बी बराबर है एफ के, ठीक है, बट दिस साइड ये वाली साइड बराबर है इसके, किसके, इसके। अब देखो, तो इस केस में हम कैसे लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, वो होगा कैसे लिख सकते हैं, कि जो एंगल जिस एंगल के बराबर है, जैसे जब भी हम ट्रायंगल ट्रायंगल लिखते हैं, जैसे ए हमने लिखा, फिर बी लिखा, सी लिखा, ये तो आप लिख सकते हो कोई भी तरीके से। अब ए एंगल को पहले, जो जिस एंगल से वो मैच कर रहा वो लिखिए, मतलब हमने डी लिख लिया। बी एंगल किससे मैच कर रहा है, एफ से, तो हमने पहले एफ लिख लिया, राइट। देन रिमेनिंग जो पॉइंट है, that automatically going to be equal, means that this is equals to E. C is match with E. C is match with E. Right? Now you see यहाँ पे कि एंगल की Q किसके बराबर है बेटा, Q किसके बराबर है, N के, ठीक है ना। R किसके बराबर है, R किसके बराबर है, M के, ठीक है ना। P किसके बराबर है, P किसके बराबर होगा,
कुछ नहीं कह सकते, ऐसा कुछ नहीं दिया है, बट दिस साइड इक्वल्स टू दी है किसके, एल के। नाउ हाउ हाउ वी कैन राइट कि ट्रायंगल पी, पी लिखा, ठीक है ना, देन क्यू आर, ठीक है ना। अब देखो क्यू किससे मैच कर रहा था, एन से, तो हम पहले एन लिखेंगे, देन उसके बाद आर, आर किससे मैच कर रहा था, एम से, तो हम एम लिखेंगे, देन रिमेनिंग लेटर इज एल, राइट। So that's how we can write the congruent theorem, right? Now you see what is the precaution we have to be take care whenever we are writing the, I mean the how the triangles are the congruent, right? So what it says, while using the axiom angle side, the two equal side must be corresponding side. मतलब कहने का मतलब ये है कि इट शुड बी करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब जैसे इस साइड के का इस साइड से जुड़ा हुआ एक एंगल बराबर था, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस चीज में कि क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो कि एंगल बी करस्पॉन्डिंग है ई के, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि एंगल जो डी है, एंगल एंगल ई है, वो डी के करस्पॉन्डिंग है, बट यहाँ पे साइड जो है एसी, वो करस्पॉन्ड एसी किसके बराबर हो गई, ईएफ के। इस केस में कॉन्ग्रुएंट क्या हम लिख पाएंगे, इस चीज की कोई गारंटी है क्या, बताओ। नहीं, क्योंकि इस साइड से जुड़ा हुआ एक एंगल डिफरेंट है, बिकॉज ये करस्पॉन्डिंग साइड नहीं है, देखो ये करस्पॉन्डिंग साइड नहीं है, करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड किसकी है, बीसी की। दैट्स व्हाई द ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट विद डी ई एफ, राइट, अंडरस्टूड। दिस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, राइट। इस केस में देखो एंगल साइड एक्सॉम इज अनदर फॉर्म ऑफ द एंगल साइड एंगल का। कैसे, देखो ये देखो ये क्या हुआ, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट नहीं है बाई ए ए एस, बाई ए ए एस मतलब एंगल साइड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। नाउ यू सी सेम थिंग, सेम थिंग, इसी चीज के बारे में जिक्र हो रही है कि ए बी सी और यहाँ पे देखो डी ई एफ, जब ये करस्पॉन्डिंग साइड आ गई, अभी इस केस में करस्पॉन्डिंग साइड आ गई, तो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए डी के बराबर है, एंगल बी ई के बराबर है, और ए सी किसके बराबर है बेटा, डी एफ के बराबर है। इन दैट केस बिकॉज अभी ए सी क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है डी एफ की, तो हम इस केस में बोल सकते हैं कि दिस इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल as per the AAS principle, मतलब angle side principle, right? Since the sum of the angle of the every triangle is 180 degree, therefore, if any two angles of the triangle are equal to the two angle, then automatically another angle is also going to be equal with the third angle, right? Means that इनका कहने का मतलब ये है कि अगर ये एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना, ये एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होने वाले, ये तो आपस में इक्वल हैं, तो बचा हुआ एक एंगल ये भी इसके इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जब हम ये वाला प्रिंसिपल इस तरीके से इसको समझते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर टू एंगल इक्वल हो गए, तो तीसरा एंगल आप तो ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि देखो एंगल ए डी के बराबर हो गया, और एंगल बी ई के बराबर हो गया, तो ऑटोमेटिकली एंगल सी किसके बराबर हो गया, एंगल सी एफ के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस केस में क्या लिख सकते हैं कि हम यहाँ से भी हम लगा सकते हैं, ये वाला एंगल पकड़ के और ये वाला एंगल पकड़ के, बिकॉज ये वाली साइड करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल। इस केस में क्या हुआ, एंगल साइड एंगल, तो हम ये वाली थ्योरम भी लगा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम एंगल एंगल और साइड पकड़ रहे हैं, ये वाली थ्योरम लगा रहे हैं, तो इसी थ्योरम को हम इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, ए एस ए, मतलब ए एस ए मतलब एंगल साइड एंगल थ्योरम से भी। बिकॉज हम क्या करेंगे कि जो दो एंगल इक्वल दिए तो तीसरा अपने आप इक्वल हो गया, तो हम इस वाले एंगल को छोड़ देंगे, हम इसको पकड़ के उसका कॉन्ग्रुएंसी क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। So that's how, I mean, our theoretical section is going to be completed, right? And the further discussion we are continue on the practice session, I mean, on the practice problem, right?
So that we will, I mean, record tomorrow only. Right? Thank you for